لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام اس عیسائی کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین ذات عبد القادر جیلانی کی ہے، جاؤ اسی کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث پاک ہے۔ بس این اختتام اور بات پھر مکمل۔ اب آپ توجہ کریں گے، اللہ اللہ، یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا غوث الاعظم دستگیر کو اللہ نے خاص بات یہ عطا کی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا کہ انہوں نے بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور سارے اولیاء نے اپنی گردن کو جھکایا۔ یہ بات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کل اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ غوث پاک نے یہ بات کہی، کچھ لوگوں نے کہا وہ بے ہوشی کی حالت میں کہہ دی، اس لیے یہ بات ہو گئی معاذ اللہ۔ کسی نے کہا شکر کے طور پہ کہہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ قطعاً نہیں ہے۔ آؤ آؤ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، آپ زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ غوث پاک نے جب یہ بات کہی، اب آپ توجہ کرنا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان سمجھنا، غوث پاک کا مقام سمجھنا۔ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر نے یہ بات کہی تو ایسے روا روی میں نہیں کہہ دی، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات جب غوث پاک سے کہلوائی، تو جب قدرت یہ بات ان سے کہلوا رہی تھی تو پہلے ہوا یہ کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کے دل پر تجلی فرمائی۔ عوام کے مجمع میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ تجلی کا مطلب کیا ہے، لیکن اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قدرت نے جب ایک پہاڑ پر تجلی کی تو وہ پہاڑ جل گیا، اسی کو طور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، طور پر قدرت تجلی کرے 70,000 پردوں سے تو طور جل جاتا ہے۔ اور میرے نبی کے بیٹے عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ قدرت ان کے دل پہ تجلی کرتی ہے تو عبد القادر کا دل جلتا نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ ثابت نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امیر قادری صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ مرتبہ لوگ کیا جانے، فرماتے اللہ نے تجلی کی، کہنے والا عبدالحق محدث دہلوی کا نام نہیں ہے۔ علم حدیث جس نے ہندوستان میں عام کی ہے اسی کو عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں۔ علم حدیث منت ہے ہندوستان کے اندر۔ اس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غوث پاک کے دل پر اللہ نے تجلی کی، اللہ نے تجلی کی غوث پاک کے دل پر، اللہ نے غوث پاک کے دل پہ تجلی کی۔ اور پھر صرف تجلی نہیں کی، فرماتے جب اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے دل پہ تجلی کی تو تجلی کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے لیے خلعت بھیجی، ان کے لیے جوڑا بھیجا۔ ان کے لیے جب خلعت بھیجی گئی تو وہ خلعت انہوں نے زیب تن کی۔ خدا تجلی کرتا ہے، خدا کے انوار تجلی کرتے ہیں ان کے دل پر۔ غوث پاک کو رسول اللہ کی طرف سے خلعت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اللہ اکبر، شیخ عبداللہ شاہق لکھتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جتنے روئے زمین کے جتنے اولیاء تھے سب غوث پاک کے سامنے حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جو قبروں میں چلے گئے تھے ان کو بھی حاضر کیا گیا، جو عالم ارواح میں تھے ان کو بھی حاضر کیا گیا، فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، کیونکہ غوث پاک بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں فرشتے ہیں، ان
बेटे का दामन तुमने नहीं पकड़ा है कोई ऐसी बात कहने वाला? है कोई ये बात करने वाला? ये बात सिर्फ गौस पाक को ज़ेबा है, औलिया की कायनात में ये उन्हीं को ज़ेबा है। अल्लाह अकबर। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जब कहा इंसान औलिया अल्लाह ज़रूर ज़मीन के, कब्र वाले, आलम अरवा वाले, सारे जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, यानी जो मकाम विलायत पर थे, फरिश्तों में रसूल मलाइका की बात नहीं कर रहा हूं। बात करने वालों को भी जरा ध्यान से सुन लिया करे कि बात मैं कर रहा हूं, इसलिए रसूल मलाइका का तस्करा नहीं कर रहा हूं। आप मफ़हूम मुखालिफ मुराद मत लीजिएगा। सब थे। शेख साहब कहते हैं, शेख अब्दुल हक, यहां तक के उफक, यहां तक के उफक भर गया, उफक नजर नहीं आता था, और सब ने अपनी अपनी गर्दनों को गौसे पाक के लिए झुका दिया। अब किस किस ने झुकाया? अगर इजाजत दे तो एक बात कह दूं। किताब का नाम है तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर। लिखने वाली जात है इमाम अरबली की। इमाम अरबली के लिए सुन्नियों के मजमे में इतना ही कहना काफी। इमाम अरबली वो इमाम है जिसका हवाला इमाम अहले सुन्नत देते हैं। इससे ज्यादा तारुफ तो मैं नहीं करा सकता ना, वरना आप सोचेंगे कि भुसावल के देहातियों या भुसावल के शहरियों के सामने और आसपास के देहातियों के सामने आपने किस इमाम अरबली का नाम ले लिया। लेकिन यहाँ के सुन्नी तो इमाम अहमद रजा को जानते हैं ना। एक सवाल उलूम, उसमें मैं कुछ तशरीह के साथ बयान कर रहा हूँ इमाम अरबली की बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मौला अली और फारूक आजम को दिया। मेरी उम्मत का एक आदमी है, मेरी उम्मत का एक आदमी है, उसका नाम उवैस है, यमन में करन का रहने वाला है, ये जुब्बा उसको देना। तवज्जो सुनिए, ये जुब्बा उसको देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। हुजूर जाने दुआ, हुजूर जाने दुआ। अगर किसी से दुआ करवा रहे हैं तो वो दुआ करने वाला उवैस की शान की बात, की शान की जात हो, है ना। मेरी उम्मत के लिए उवैस से कहना। हालांकि हुजूर की दुआ के बाद उम्मत को किसी की दुआ की हाजत नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि औलिया अल्लाह की शान क्या है, यानी उनके यहाँ दुआ अल्लाह के रसूल करवा रहे हैं और वली की शान बयान कर रहे हैं। ये वैसे करनी तबक़े औलिया में, ताबईन में है, ठीक है, उनके पास भेजा कि दुआ कर। अब लंबी नहीं करता, ये वाक़या आप सब जानते हैं, लेकिन इतना हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, जुब्बा लेकर वैसे करनी को दिया मौला मुश्किल कुशा और फारूक आजम ने दिया। उवैस ये हुजूर ने दिया। उसमें एक तफसील आप जानते हैं कि जब उवैस को जुब्बा दिया तो हुजूर का सलाम भी कहा, हुजूर का सलाम भी कहा। सरकार का जब सलाम पहुंचा ना उवैस के पास, तो उवैस कहने लगे, उमर हुजूर ने मेरा नाम लिया था। तो फारूक आजम ने कहा लिया था। मचल गए। जब नाम लिया था तो कैफियत क्या थी? वो फारूक आजम थे, कहने लगे इतनी मोहब्बत थी तो आके मिले क्यों नहीं, क्यों नहीं मुलाकात की? उवैस ने फिर इतना कह दिया, आप तो बार बार मिले हैं, जरा मुझे इतना बता दें कि हुजूर का हुलिया भवों के हवाले से कैसा था, भवें कैसी थी हुजूर की, इतना बता दे। फारूक आजम की नजरें झुक गई, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे जब निगाहें उठती थी तो गैरते इश्क की वजह से झुक जाती थी, गैरते इश्क की वजह से झुक जाती थी। मैं नहीं बता सकता कि भवें कैसी थी, मिली हुई थी या जुदा जुदा थी। कहते हैं अब मुझसे पूछो, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बता सकता हूं कि जब कोई दूर से देखता था तो अलग अलग नजर आती थी और करीब जाके देखता था तो मिली हुई नजर आती थी। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि जुब्बा दिया। ये मैंने बीच में अपनी तरफ से बात की, इमाम अरबली ने ये नहीं लिखा, ये तो मैंने कहा जो मैंने अबरू की बात की। इमाम अरबली लिखते हैं जब फारूक आजम ने रसूलुल्लाह का जुब्बा उवैस को दिया और अता किया और कहा कि हुजूर ने कहा कि दुआ करो हुजूर की उम्मत के लिए, उवैस वो जुब्बा ले गए, नमाज पढ़ी,
सर सजदे में रखा और सर सजदे में रखकर उवैस कहते अल्लाह तेरे हबीब ने कहा है कि उनकी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करूं, मौला उन्हीं के सदके उनकी उम्मत को बख्श दे। जवाब आया उवैस आधी उम्मत महबूब की तेरी दुआ पे बख्श दी। आधी उम्मत महबूब की तेरी दुआ पे बख्श दी। उवैस थे दीवाने, कुछ तैश के रसूल, फना फिर रसूल। उवैस ने कहा मौला आधी क्यों, पूरी बख्श दे। जवाब आया नहीं, जवाब आया नहीं, इसलिए कि आधी तेरी दुआ से बख्शेंगे और जब कयामत कायम होगी तो आधी अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। इमाम अरबली लिख रहे हैं आधी अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। अब उवैस करनी कहते हैं ये अब्दुल कादिर है कौन, बता तो इसकी वजह से आधी उम्मत बख्शेगा। मैंने तो मांगा मिला, अभी उसने मांगा नहीं और तू कहता उसकी वजह से बख्शेंगे। वजह में फर्क है, अहले इल्म अच्छी तरह जानते हैं। उस उवैस को भी सलाम है जिसकी दुआ से बख्शी जा रही है, और उस अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद का मकाम क्या है जिसकी वजह से बख्शी जा रही है। अरे जब बेटों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया के मर्तबे का आलम कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि अपनी बेटी बख्शवा नहीं सकते। अरे जिस बेटी के बेटों की ये शान है उस बेटी की शान का आलम क्या, उस बेटी की शान का आप क्या कहते हैं बेटी बख्शवा नहीं सकते। अरे वो तो बेटी पर नसब में 11वें या 14वें नंबर पर है, उनकी ये शान है। आधी आधी अब्दुल कादिर की वजह से बख्शेंगे। आखिरी बात कर रहा हूं, मुख्तसर करो, छोड़ दी आवाज छोड़। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं इतनी जोर से कह सकूं कि किसी के दिल में बैठे। हाँ बढ़े, उसको छोड़ दे ऐसे। आधी असल में मेरी आदत है इस्लाही बयान में अपने अंदाज से करता हूं, लेकिन जब मैं अपने मुर्शिदों का जिक्र करता हूं तो फिर ना मैं अपनी आवाज की बात करता हूं, ना अपने गले का ख्याल करता हूं, ना लोगों के कान का ख्याल करता हूं। मुझे फिर अपने गले का भी ख्याल नहीं होता, लोगों के कान का भी ख्याल नहीं होता, इसलिए कि मुर्शिदों का जिक्र है, आकाओं का जिक्र है, इसलिए कि चुपके वो बातें कर जिनके आका शान वाले हो फिर वो चुपके नहीं बोलते। हाँ, और फिर आपको भी ऐसे मौके पे चुप रह करके सुनना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ही नहीं है, हाँ आपकी कली कली ऐसे खिलनी चाहिए बातें कि लगे कि सब बात से मुत्तफिक हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूं आप भी तो मुत्तफिक हो जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जे। आधी तेरी दुआ से बख्शी है, आधी अब्दुल कादिर की वजह से बख्शी। अब उवैस कह रहे हैं ए अल्लाह ये कौन है अब्दुल कादिर, मुझे बता तो सही, ये अब्दुल कौन है मुझे बता तो सही। अब अल्लाह बयान कर रहे हैं, इमाम अरबली लिखते हैं ये अब्दुल कादिर जिलानी वो है उवैस जो मर्तबा नबियों में अपने महबूब को अदा किया है, वो मर्तबा वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को अदा किया है। और अल्लाह ये एक है कहां, उवैस करनी ने पूछा ये है कहां, इरशाद हुआ अभी पैदा नहीं हुआ है, फी मक़द सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़तदिर की मंजिल में है। इसका मकाम ये है कि जब इसका दौर आएगा, जब इसको जमीन पे भेजा जाएगा तो फिर ये कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। उवैस करनी ने कहा लोग जब झुकाएंगे मौला तू गवाह रहना, उवैस करनी अभी से गर्दन झुका रहा है। तकबीर, जिसके लिए उवैस गर्दन झुकाते हैं उसी को अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं। और मेरा इमाम कहता है हजारों ताबई से तू फुजूल कर। उवैस ताबई है ना, हजरत उवैस हजारों ताबई से, एक दो से नहीं, हजारों
ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث. مصطفیٰ